ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਊਰੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਊਡੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਲੋ ਡਾਇਵਰਟਰ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਥਰਮਬੈਕਟਮੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ 51 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਲੋ ਡਾਇਵਰਟਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲੀ ਨਸ ਯਾਨੀ ਐਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕੁਆਇਲਸ ਪਾਈ ਗਈ। ਮਰੀਜ਼ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਆਏ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 70 ਸਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੰਬੋਟਿਕ ਅਨਕਲੂਸਿਵ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਲਾ ਕਲੌਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਥਰਮਬੈਕਟਮੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 70 ਸਾਲਾ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਤੁਰਥ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟਣ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਕਲੌਟ ਜੰਮਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਡਾਇਵਰਟਰਸ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਥਰਮੋਬੈਕਟਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਥਰਮਬੈਕਟਮੀ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੈਨਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨੀਸ਼ ਤੋਖੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। क्रॉस करती है ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਥੇਟਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਲੌਟ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੈਥੇਟਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲੌਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀ ਥੋੜਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲੌਟ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So this is the graphic representation of what happens. It is not as simple as the picture can show, but through technical skill and few more maneuvers, more often than not, almost 99% cases it got through. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की न्यूरो इंटरवेंशंस के लिए है जिसमें आप देखें हम बगैर चीरे के ब्रेन की जो नाड़ियां हैं वो फट जाए या ब्लॉक हो जाए उसका इलाज करते हैं। और ये जैसे हार्ट में स्टेंट्स डलते हैं वैसे ही ब्रेन में नाड़ों में टांग के ज़रिए या किसी भी नाड़ से घुस के बगैर चीरे के कोई ना कोई डिवाइस हम डालते हैं वहाँ पे और ये डिवाइस या तो क्लॉट निकालने के लिए होती है या कोई लीकेज बंद करने के लिए होती है। और इससे आप देखो जलंधर के ही हमने कई पेशेंट्स किए हैं और फिनोमिनल रिजल्ट्स हैं जो आज तक हम सोच नहीं सकते थे कि ब्रेन की नाड़ियों को रिपेयर करने से पेशेंट या हमारे लोग बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, वो आज एक रियलिटी है और ये और डेवलप होगी।
सर ये जो टेक्निक है ये कब से आप यहाँ पे मतलब लॉन्च कर रहे हैं, मतलब कब से कितने मतलब पेशेंट को देख सकते हैं? देखो ये टेक्निक तो मैं खुद पिछले 10 साल से इस एरिया रीजन में काम कर रहा हूँ, दिल्ली से नॉर्थ सारे में, और फोर्टिस में हम पिछले 3.5-4 साल से कर रहे हैं। और फोर्टिस में के साथ जुड़ने के बाद ये टेक्निक जो है अब एक बड़े स्केल पे हम कर पा रहे हैं और हर रीजन को हम एक तरीके का सपोर्ट कर पा रहे हैं। जो भी पेशेंट हमारे पास आ पाता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया या किसी भी तरीके से उसको पता लगे, तो वो जब हमारे पास पहुंचता है तो हम फिर उसको टाइमली इलाज कर पाते हैं। और वो फिर वही जो पेशेंट एक तरीके से इकोनॉमिकल बर्डन हो सकता था घर के किसी हाउस होल्ड के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर, आज वो फुली प्रोडक्टिव है और वो लोग एक अच्छी जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट लाइफ जी पा रहे हैं। सर इससे पहले जब ये प्रॉब्लम आती है तो उससे पहले कोई ऐसे सिम्टम है तो जिसके कारण ये हो सकती है? कुछ पेशेंट्स को वार्निंग हेडेक्स होती हैं या वार्निंग स्ट्रोक्स TIAs होते हैं, पर ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। कुछ एक आप माने 1/4 या उससे भी कम मरीज़ों को ये सिम्टम्स आते हैं, जिनको हम अगर सीरियसली ले ले पेशेंट और फैमिली तो वो डॉक्टर तक पहुंच जाए, इन्वेस्टिगेट हो जाए और पता लग जाए। नहीं तो फिर कई बार ये ज़्यादातर बार ये साइलेंट होती है, सडन होती है, और तब हमारे पास एक ही तरीका है, हम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचें। बीमारी का कारण क्या है? किस कारण है? देखो शरीर की नाड़ें हैं इतने सालों से चल रही हैं, तो इसके 2 कारण मान लीजिए आप। एक जिनको हम बदल सकते हैं, मॉडिफाइबल। 2 जिनको हम नहीं बदल सकते, जो होना ही है। जो नहीं बदल सकते वो है जेनेटिक कमज़ोरी नाड़ों की, या कोई उम्र बढ़ गई है, ये एरिया में ठंड है तो नाड़ें सिकुड़ी रहती हैं। ये कुछ नॉन मॉडिफाइबल है। हमारी डाइट अच्छी रहे, जिनको हम ठीक करें तो ज़्यादा चल जाएंगी नाड़ें। अगर हम रोज़ एक्सरसाइज करें, अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखें, बहुत सेडेंट्री नहीं रखें, स्मोकिंग, अल्कोहल ये चीज़ें अवॉइड करें, और घी तेल कम खाएं, नमक ठीक रखें, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें, तो ये मॉडिफाइबल हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। तो जो हम बदल सकते हैं हम बदल के इनको कंट्रोल करें, कम से कम बीमारी हो, और फिर भी अगर हो जाती है तो जल्दी से जल्दी मेडिकल फैसिलिटी को हम अवेल करें जहाँ पे प्रॉब्लम तो जब ये प्रॉब्लम आती है पेशेंट को हॉस्पिटल तक जाने में कोई टाइम मिलता है या उसको प्रिकॉशन के तौर पे कोई ऐसे सिम्टम्स ऐसे होते हैं तो क्या करना चाहिए? अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम आते हैं तो जल्दी से जल्दी मेडिकल फैसिलिटी पहुँचें। एस्पिरिन ना लें, डिस्प्रिन ना लें, क्योंकि ये जो है नाड़ों में जब तक CT स्कैन नहीं होता हमें पता नहीं ब्लॉकेज है या ब्लीडिंग है। हार्ट में सिर्फ ब्लॉकेज होती है तो आप एस्पिरिन डिस्प्रिन दे सकते हो। ब्रेन में ब्लॉकेज भी है, फट भी सकता है, तो आप हम लोग एस्पिरिन डिस्प्रिन दे के उसकी नाड़ों अगर फटी होगी तो नुकसान कर जाएगी, तो ये नहीं अलाउ कर सर वैसे तो विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन कई केसों में ऐसे भी होता है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। कई केसों में सर आपने ये भी देखा होगा कि पेशेंट तो घर से ठीक आता है, लेकिन डॉक्टर्स के पास जाके जब उसका ट्रीटमेंट होता है तो उसकी डेथ होती है, तो पेशेंट के घर वाले ही डॉक्टर्स पे इल्ज़ाम लगाते हैं। देखो ये तो बड़ी सब्जेक्टिव बात है, कोई किस चीज़ को कैसे समझता है। मरीज़ घर से आया है तो कोई तकलीफ़ लेके आया है, हॉस्पिटल में जब कोई ना कोई उसको इंडिकेशन मिला है। अब अगर अंदर कोई गड़बड़ शुरू हुई है और वो हॉस्पिटल पहुंचता है, वहाँ जाके वो गड़बड़ पता लगती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हर चीज़ आप हॉस्पिटल और मेडिकल साइंस को ब्लेम नहीं कर सकते। वो घर बैठे भी हो सकती हैं प्रॉब्लम्स। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करें और उसको ट्रीट करें। कॉस्ट तो वेरिएबल है वैसे, अब किसको कितना बड़ा क्लॉट है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, बट ये ज़रूर है कि अगर कॉस्ट और बेनिफिट देखोगे उस दिन का नहीं, कुछ सालों का, तो फिर ये इलाज करा के जो उस दिन आपने खर्चा किया वो अगले कई सालों तक पर्सन इतना प्रोडक्टिव होता है कि वो कई खर्चे निकाल लेता है, इसके कई गुना। तो इसका खर्चा आप मान के चलिए लाख 1.25 लाख से शुरू हो जाता है और फिर कहाँ तक जाता है डिपेंड्स कि हम कितनी बड़ी बीमारी से डील कर रहे हैं।